ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید کو ملنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق زمبابوے اور آئندہ سیریز میں عاقب جاوید کو ذمہ داریاں دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وائٹ بال ہیڈ کوچ کے حوالے سے فیصلہ جلد متوقع ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اب ملکی کوچ کو مستقل ذمہ داریاں دے گا۔ پاکستان نے 24 نومبر سے 5 دسمبر تک زمبابوے کے خلاف سیریز کھیلنی ہے۔ قومی ٹیم 10 دسمبر سے 7 جنوری تک جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کھیلے گی۔ سیریز میں 3 T20، 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچز شامل ہیں۔ دورہ آسٹریلیا سے قبل گیری کرسٹن نے ہیڈ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ ریڈ بول کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کو دورہ آسٹریلیا کے لیے عبوری کوچ مقرر کیا گیا تھا۔ بات کریں گے پنجاب میں موسم کی صورتحال پر، تو آپ کو بتائیں کہ اسموک آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے۔ فضائی آلودگی میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر، جبکہ پاکستان میں بدستور پہلے نمبر پر موجود ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 468 تک پہنچ گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ملتان دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 338 ریکارڈ کیا گیا۔ اسموک اور دھند سے حد نگاہ شدید متاثر ہو گئی۔ موٹر ویز کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ دھند اور اسموک کے باعث ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول بھی شدید متاثر ہوا۔ لاہور میں تعلیمی ادارے تاہم ثانی بند کر دیے گئے، جبکہ تعمیراتی سرگرمیاں ایک ہفتے کے لیے بند رہیں گی۔ اور مزید آپ کو بتائیں کہ لاہور میں دھواں دینے والی گاڑیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ حد نگاہ کم ہونے سے پنڈی، بھٹیا اور قصور ٹریفک حادثات میں ایک شخص جاں بحق، 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زہر آلود فضا کے باعث پنجاب میں سانس اور آنکھوں کے امراض بڑھنے لگے۔ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں 80 سے 1000 سے زائد کیسز رپورٹ کیے گئے۔ ایک ماہ میں اسموک سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ کلاس سے خبر ہے، جس کے علاقے شامردان میں سیکیورٹی فورسز نے ایف سی کی چوکی پر حملہ ناکام بنا دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا اور 4 کو زخمی کر دیا ہے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاز کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR کے مطابق ہمارے فوجیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ آگے بڑھیں، اب آپ کو بتائیں کہ گندم خریداری کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ گندم خریداری کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے سربراہ وزیر خزانہ ہوں گے، جبکہ وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، وزیر تجارت اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور اور بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ کمیٹی میں شامل ہیں۔ کمیٹی IMF کے نقطہ نظر کو پیش رکھتے ہوئے کام کرے گی، جبکہ کمیٹی گندم کی مارکیٹ کے موجود ریگولیٹری فریم ورک کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی پالیسی سٹیک ہولڈرز اور صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد امدادی قیمت، وفاقی حکومت اور صوبوں کی جانب سے گندم کی خریداری کی سفارشات اور گندم کی دستیابی اور قیمتوں کے استحکام کو یقینی بنائے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف 25 اکتوبر کو لاہور سے دبئی روانہ ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے دبئی سے لندن، امریکہ اور یورپ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 7 نومبر کو لاہور سے خصوصی طیارے کے ذریعے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا پہنچی تھی۔ جنیوا میں مریم نواز نے پیراتھائرائڈ کی شکایت کے باعث طبی معائنہ کروایا اور کچھ دن قیام کے بعد وہ لندن آئی تھیں۔ لندن سے ملک واپسی پر قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PTI کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے۔ احتجاج کی کال دینے والے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने रोड एक्सीडेंट मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। इन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत की जो कि सड़क हादसात में अपने प्यारों से जुदा हो गए। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में रोड सेफ्टी को मजीद बेहतर बना रहे हैं। हादसात से बचाव के लिए 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मरम्मत जारी है। पहली मरतबा मोटरवेज पर रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। हम सबको मिलकर रोड सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी निभानी होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ी मेहनत की। ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेंबर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर बिलावल भुट्टो की दिल आज़ारी हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ शमूलियत का ऐलान करेंगे। ये सियासी धमाका नहीं, मामूल का सियासी काम है। वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगर्मियों का मरकज बन गया। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहरिक हो गई। वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हज़ारा, मालाकन और बलूचिस्तान के अहदेदारों के इजलास हुए। ज़राए के मुताबिक तमाम इजलासों में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी ने बातचीत की। बुशरा बीबी ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम पीटीआई अहदेदारों तक पहुंचाया। उनका कहना था कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जद्दोजहद तेज की जाए। 24 नवंबर को तमाम रीजन्स और बलूचिस्तान से कारकुनों की शिरकत यकीनी बनाई जाए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के साथ मुलाकात की। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई की जवानों से बहुत तवक्कुआत हैं। दूसरी जानिब ओहदों की तकसीम का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पेशावर के जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ने इस्तीफे का ऐलान वीडियो पैगाम के जरिए किया। पीटीआई पेशावर रीजन के सदर अरबाब आसिम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी में मामूली इख्तिलाफात आते रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला जल्द हल हो जाएगा। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिब्बी में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ज़िमनी इंतखाबात में 22 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहयार खान, डोमकी और सिब्बी इत्तेहाद के उम्मीदवार मीर असगर मरी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जिले भर में पोलिंग स्टेशन की तादाद 124 है। 67 पोलिंग स्टेशन को हसास और 57 को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। ज़िमनी इंतखाबात में कल वोटर्स की तादाद 1,16,161 है, जिसमें 64,223 वोटर्स मर्द और 51,938 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। पोलिंग के दौरान अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां लुटेरे बेलगाम हैं। कराची के इलाके वाटर पंप फ्लाई ओवर पर डाकुओं ने रहीम खान के ताजिर से 60 लाख रुपए मालियत के आईफोन्स लूट लिए। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन रिजवान इरफान ने बताया कि रहीम खान से सदर मोबाइल मार्केट आईफोन की खरीदारी के लिए आने वाले ताजिर को वाटर पंप फ्लाई ओवर पर डाकुओं ने लूट लिया। मुतासरा ताजिर मुजम्मिल ने बताया कि सदर से मोबाइल फोन लेकर निकले थे। वाटर पंप फ्लाई ओवर पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने रोका। मुलजिमान ने असलहा दिखाकर हमसे मोबाइल फोन का बैग छीना और दीगर सामान भी लेकर फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ समनाबाद थाने में दरख्वास्त जमा कराई है। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि जिना अस्पताल कराची से लांडी जेल का खतरनाक कैदी फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंशियात के केस में लांडी जेल में कैद मुलजिम आगा सलमान को कोर्ट पुलिस MRI करवाने के लिए जन अस्पताल लाई थी। मुलजिम ने वॉशरूम जाने का कहा और वहां से फरार हो गया। कोर्ट पुलिस की कस्टडी से मुलजिम के फरार होने का मुकदमा सदर थाने में दर्ज कर लिया गया, जबकि पुलिस ने फरार कैदी की तलाश भी शुरू कर दी है।
अब आपको बताएं कि एस्टोर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी हुई। देवसाई, बर्जिल टॉप और रामा मेडोज में 3 रोज में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी होने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में तेज बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से जागरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी कालाम में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख कर लिया। अस्तोर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी हुई। देवसाई, बुर्जिल टॉप और रामा मेडोज में 3 रोज में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी होने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में तेज बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से जगरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। शाहराह नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हट्टियां बाला में बर्फबारी के बाइस वादी लीपा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुअत्तल है। बात करेंगे इसराइली बर्बरियत के हवाले से, तो आपको बताएं कि गजा में इसराइल की बर्बरियत और फिजाई हमले ताहाल जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल ने हमलों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद और दर्जनों को जख्मी कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को भी निशाना बनाया। हमले में 23 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अल-शाती पनागुज़ीन कैंप पर हमले में खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए। खान यूनुस में एक घर पर हमले में 9 अफराद जाबहाक, जबकि जबालिया कैंप पर ड्रोन हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी सोले अल शरीफ भी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 43,800 हो गई। 1,03,600 अफराद अभी तक जख्मी हो चुके हैं। लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइल की बमबारी जारी है। इसराइली हमलों में मजीद 60 लबनानी शहरी शहीद कर दिए गए और 130 जख्मी हो चुके हैं। उधर न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम में वोटिंग जारी है। वोटिंग का अमल शुरू होने से पहले ही लोगों की तवील कतारें लग चुकी हैं। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंच चुकी है। वोट डालने के लिए आए अफराद ने भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की। खालिस्तान रेफरेंडम में वोटिंग के लिए लोग पुरजोश नजर आ रहे हैं। मुबसरीन का मानना है कि रेफरेंडम से भारत और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा के साथ खालिस्तान रेफरेंडम पर बातचीत भी की। न्यूजीलैंड की वज़ारत ख़ारजा ने भी भारत और न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू की तस्दीक की है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में ज़ेलेंस्की का कहना था कि उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और नई अमरीकी इंतजामिया यकीनी बनाएगी कि जंग खत्म हो जाए। यूक्रेनी सदर का मजीद कहना था कि उन्होंने ट्रंप के साथ अमरीकी सदारती इंतखाबात में उनकी जीत के बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूस के खिलाफ जंग के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने ये भी वाज़ेह नहीं किया कि ट्रंप ने रूस के साथ मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से कोई मुतालबात किए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि उन्हें ट्रंप की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं सुनने को मिली जो यूक्रेन के मौक़िफ़ के खिलाफ हो। न्यूज़